Hello everyone. So we are starting a new chapter, that is application of derivatives. Okay, application of derivatives, which we will call AOD. Okay, so there are many things we will be discussing in this chapter, namely tangents and normals. Okay, rate of change, then approximation. These are certain topics that we will be discussing in chapter. It's quite lengthy chapter. Okay, after that we'll be discussing this increasing decreasing functions, then maxima minima. Okay, and then finally we will be having this mean value theorems. So these are many topics that we will be studying in this chapter. Okay, so in this lecture we are going to start the very first part, and that is tangent and normals. Okay, so we are starting this tangent at normals. Okay, the first thing that we have to understand, what is the definition of tangent. What is tangent in very simple language? In very simple language, in layman language, you call any line which touches a curve at certain point, then we will call that line as tangent. Okay, but this definition is very ambiguous, or not very clear definition, confusing definition. Okay, because a tangent, a line can also intersect the curve, and simultaneously it can be the tangent of that curve. Okay, let us understand. Let this be a curve y equal to fx. Okay, so this line, you can clearly see this line is touching this curve y equal to fx at certain point p. Okay, let me call this point as x1 y1. Okay, but this is intersecting this curve again at certain point, let's say x2 y2. Okay, so still this line is a tangent to the curve y equal to fx on the point x1 comma y1, on the point x1 comma y1. Okay, so tangent is basically a local phenomenon. If a line is a tangent to the curve, this doesn't guarantee that the line is not going to intersect that curve. Okay, if this is tangent to the curve, then there will be a certain point at which the line will just touch the curve. Apart from that point, and at any other point, it may also intersect the curve. Okay, so this is the definition of the tangent. If a line, I can write it as tangent on some curve y equal to fx at some point x1 comma y1 is a line which just touches the curve. Which curve? That curve y equal to fx. Okay, curve on the point this x1 comma y1. Okay, so this is basically the tangent. Okay, tangent एक कर्व का टेंजेंट हो सकता है ना, एक 3D बॉडी का भी टेंजेंट हो सकता है. जैसे आप यहाँ पे देख लो, दिस इज tangent to a sphere. Okay, we are having a sphere, this is sphere, and this is a plane. अभी एक प्लेन एक स्फीयर को टच कर रहा है, मान लिया किसी पी पॉइंट पे टच कर रहा है, so this plane becomes the tangent for the sphere. Okay, in this case this line was the tangent for the curve. So tangent मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लाइन ही होगा. That can be a plane for a 3D figure, but we are not interested in this 3D. Okay,
we will be discussing about tangent line, which is tangent to a curve, any planar curve. Okay, so this is the definition. Now how to write the equation of tangent and normal. Let us see what will be the normal. Okay, tangent is a line which touches the curve at a point. Then what will be the normal? Normal will be a line, which is perpendicular to the tangent, which will be perpendicular to the tangent at the point of tangency. In this case, the point of tangency is what? This point of tangency is P. So at the point of tangency, any line which is perpendicular to the tangent will be our normal. Okay, so this line is normal. Okay, so how to write the equation of this tangent? The equation of tangent at this P point x1 comma y1 on the curve y equal to fx. Okay, so this will be y minus y1. Tangent is basically a line, it is passing through point x1 y1, so the equation will be of the form y minus y1 equal to slope into x minus x1. Okay, and how do we calculate this slope? This slope can be calculated by differentiating the curve and putting that point x1 comma y1 into the differentiation. Okay, so if the differentiation is defined at that point, then we can calculate the slope of tangent by simply differentiating the curve at that point. At which point? At the point where we are interested in finding our tangent. Okay, but there may be many cases. In many cases you will be saying that this differentiation at certain point is not defined. Okay, so those cases we will be discussing later. Okay, अभी तक आप ऐसे समझो कि टेंजेंट एक लोकल फिनोमिना है, किसी कर्व पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट टच करने वाली लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं. वो लाइन कर्व को किसी दूसरे पॉइंट पे कट भी कर सकता है. ओके, फिर अगर उस पॉइंट पर जैसे इस केस में अगर हम पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अगर उस पॉइंट पर हमारा कर्व जो है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब उसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर x1 y1 का पॉइंट की बात हो रही है, वहाँ पर हमने कर्व को डिफरेंशिएट किया, तो उधर से जो x1 y1 वैल्यू पुट करके हमें जो भी वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा. ठीक है, प्रोवाइडेड कि डिफरेंशिएशन डिफाइंड हो. अगर डिफरेंशिएशन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर वहाँ से हम लोग स्लोप उसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ओके, अच्छा, ये तो बात हो गई टेंजेंट के इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Equation of normal at some point x1 y1 on the curve y equal to fx. Okay, so this will be y minus y1 equal to, I can write dx upon dy into x minus y1, because dy by dx was the slope of tangent. Okay, we know that the negative reciprocal is the, because tangent and normal are always perpendicular, so whatever the slope of tangent is, its negative reciprocal will be the slope of our normal. Okay, so I have written here minus dx upon dy, and this minus dx upon dy is to be calculated at the point x1 comma y1. Okay, again for this dx upon dy to be defined, for this dx upon dy to be defined, dy by dx must not be 0, because
dx upon dy is just the reciprocal of dy by dx. Okay, so this is the equation of normal and tangent at a point will always be perpendicular. Okay, ये जो टेंजेंट की डेफिनेशन थी, ठीक है ना, ये टेंजेंट की जो हमने डेफिनेशन समझी है, इसको थोड़ा एक अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है ना। ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज बेसिकली अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ओके, सीकेंट क्या होता है? सीकेंट सबको पता है। जैसे अगर ये मेरा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसको 2 पॉइंट पे कट करने वाला ये जो लाइन है, दिस लाइन इज आवर सीकेंट। टेंजेंट इज बेसिकली लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। इसका क्या मतलब हुआ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट का, कि अगर ये सीकेंट को हम लोग रोटेट करके कुछ ऐसा इसको करें कि ये फिर जो हमारा ए वाला पॉइंट है उस ए पॉइंट को सिर्फ टच करने लग जाए, ठीक है, तो उस केस में ये जो हमारा ए बी लाइन है, अगर हम बी को ए की तरफ मूव करते रहें तो ए बी जो है वो मेरा ए टी के ऊपर कॉन्साइड होने लग जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम ये दूसरी साइड से देखें, ये जो हमारा ए सी लाइन जो सेकेंड है, इस सी पॉइंट को अगर हम ये पॉइंट की तरफ मूव करने लगे, देखो ध्यान से, ये ए की तरफ मूव हो रहा है ना, और बहुत ही क्लोज कर दें अगर ये पॉइंट के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा सी ए लाइन है वो कोइंसाइड कर जाएगा कौन से लाइन के साथ में, ए टी टू के साथ में, ठीक है। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे दोनों लाइंस थे कौन कौन से, ए टी वन और ए टी टू, है ना, अगर ये दोनों सेम ही लाइन हो गए, इक्विवेलेंट लाइन हो गए, तो फिर हम ये बोल देंगे कि ये जो T1 T2 वाली जो कंप्लीट लाइन है, ये इस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। इसको एग्जांपल से और समझो। जैसे अगर बोला जाए कि y इक्वल टू साइन एक्स, मॉड साइन एक्स के ऊपर x इक्वल टू 0 पॉइंट पे टेंजेंट, बताओ क्या होगा। तो पहले देखते हैं, ज़रा इसको ड्रॉ करते हैं। Okay, this is our sin x for the interval 0 to pi. For the interval minus pi to 0, it will be something like that. And if we are taking this modulus sign, then this mod of sin x will be like this. Okay, so this is the graph of mod sin x. Okay, we are about to find the equation of tangent at x equal to 0. ओके, अब इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हो कि वो जो डेफिनेशन होती है कि मतलब x बराबर 0 पे कर्व को टच करने वाली जो लाइन होगी वो टेंजेंट हो जाएगी, है ना। ये कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है जो हमारी x एक्सिस है वो भी तो टच कर रही है इसको, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, बट x इक्वल टू सॉरी ये x एक्सिस जो है जिसका इक्वेशन y बराबर 0 होगा, ये हमारा टेंजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट। अगर मैं यहाँ से 0 से पास होता हुआ कोई भी एक सेकेंड ड्रॉ करूँ, ठीक है, 0 से पास होता हुआ मैंने ये ओ ए करके एक सेकेंड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो ये ए पॉइंट को जैसे ही मैं 0 की तरफ लेके आऊँगा, दिस ओ ए लाइन विल बी कोइंसाइडिंग विद आवर वाई एक्सिस। ये बात समझ आया? ऐसे ही अगर हम दूसरी तरफ से देखें, अगर मैंने एक दूसरा सेकेंड इधर ओ बी करके ड्रॉ किया है ना, और ये बी पॉइंट को अगर मैं इस बी पॉइंट को ए के क्लोज लेता जाऊँ, ठीक है, कैसे, इस तरीके से, तो फिर ये जो ओ बी लाइन है ये भी किसके साथ कोइंसाइड करेगा, वाई एक्सिस के साथ। इसका मतलब कि इसमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा इस केस में y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स के केस में दैट विल बी x इक्वल टू 0, दैट विल बी x इक्वल टू 0। वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट में हमेशा आपको पता है स्लोप जो है वो डिफाइन नहीं रहेगा, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है, स्लोप इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, दैट टेंजेंट इज ऑलवेज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट।
ओके, और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए, कुछ ऐसा होगा ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर बोला जाए कि x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट बताइए, टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट क्या होगा, अगर मैं 0 पॉइंट से कोई भी एक सेकेंड ड्रॉ करूँ और फिर इस वाली लाइन को अगर हम ठीक है ना ऐसे इसको क्लोज लेते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट जो है मेरा, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल रहा हूँ, फिर ये पॉइंट को अगर हम ओ पॉइंट के बहुत ही क्लोज लेके आएंगे, सो दिस ओ ए लाइन विल बी कोइंसाइडिंग विद आवर एक्स एक्सिस। और यही चीज़ रिवर्स डायरेक्शन में भी समझ लो, अगर ये ओ बी सीकेंट है, अगर हम इस सीकेंट को ऐसे बी पॉइंट को बेसिकली हम लोग ये जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट को ओ के करीब लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन भी तो ऐसे मूव करेगा, और उस केस में ये कोइंसाइड किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो दोनों ही वो चाहे हम लेफ़्ट साइड से देखें या राइट साइड से देखें, दोनों ही वो सेम लाइन के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है। तो इस केस में जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट है। इक्वेशन की बात करेंगे तो y इक्वल टू 0 हमारा इस केस का आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं लेट मी क्रिएट सम स्पेस, देखते हैं y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, ओके। इसमें x इक्वल टू 0 पे क्या कैसा टेंजेंट बनेगा, जैसे ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, सॉरी, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो अगर हमें 0 पे टेंजेंट देखना है, x इक्वल टू 0 पे इस कर्व के ऊपर क्या टेंजेंट का इक्वेशन होगा, तो फिर से हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ से मैंने कोई सेकेंड ड्रॉ किया, मान लिया उसका नाम a है, ठीक है। फिर a पॉइंट को अगर मैं o के क्लोज लेके आऊँ, तो ये जो ओ ए लाइन है, ये ओ ए लाइन मेरा किसके साथ कोइंसाइड करेगा, y एक्सिस के साथ। और रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर ये सेकेंड है, फिर हम b को o के करीब लेके जाएं, तो ये लाइन कुछ ऐसे ऐसे जाते जाते ऐसे फिर हमारा y एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस केस में भी जो टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, वो क्या है, वो y एक्सिस है। और इक्वेशन की बात करेंगे तो x इक्वल टू 0, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं इसके अलावा, जैसे y इक्वल टू रूट ऑफ मॉड x, है ना, y इक्वल टू रूट ऑफ मॉड x कैसा होगा ये, पहले तो y इक्वल टू रूट ऑफ x ऐसा कुछ होता है, फिर जब उसमें हम x के ऊपर मॉड अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि यही वाला जो ग्राफ है हमारा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा y एक्सिस के अबाउट। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट ऑफ मॉड x, है ना। अब इसमें भी अगर x इक्वल टू 0 पे आपसे बोला जाए कि टेंजेंट लिख के बताओ, तो आप क्लियरली ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सेकेंड को अगर हम जैसे जैसे इसे क्लोज करते, सेकेंड का जो दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है a, अगर हम इसको क्लोज 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 ओ के क्लोज लेके आते रहे, तो ये फिर किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, y एक्सिस के साथ। और सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर ये मेरा सेकेंड है वो भी, फिर मैं b पॉइंट को ऐसे ऐसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, b क्लोज आते गया, तो फिर से ये जो है वो भी मेरा y एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस केस में भी जो मेरा टेंजेंट है, टेंजेंट एट x बराबर 0, वो कौन है, y एक्सिस है। और इक्वेशन की बात करें तो x इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो टेंजेंट इज
द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं। हमने टेंजेंट का डेफिनेशन चेक कर लिया, फिर हमने ये भी देखा कि टेंजेंट ज़रूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट है कर्व के ऊपर तो वो कर्व को कट ना करे किसी दूसरे पॉइंट पे, ये भी ज़रूरी नहीं है। फिर हमने ये भी चेक किया कि टेंजेंट इज़ द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे लेट पॉइंट ए, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है मैंने, लेट पॉइंट ए लाइज ऑन द कर्व। ये कर्व है कोई एक्स और वाई का है ना, एक्स और वाई का कोई फंक्शन है, ऐसा लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ सम एक्स एंड वाई। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मैंने वाई को कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख दिया एक्स का है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एक तो लिखने का तरीका ये इसका ऐसे है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया मैंने, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई को अगर हम यहाँ पे लेके आए फिर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये पूरी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो कर्व को वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं या सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, तो फिर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट ए पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है तो हमने x1 y1 लिखा, फिर हमने यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप लिखा। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट के अलावा जो भी टेंजेंट होगा उसका कुछ ना कुछ स्लोप तो होगा ही होगा, है ना। तो उस वाले पॉइंट को एक अलग से हमने लिख दिया कि इफ़ टेंजेंट इज वर्टिकल देन इट्स इक्वेशन कैन बी गिवन एज, अगर टेंजेंट वर्टिकल है तो टेंजेंट वर्टिकल है तो आपको पता है उस केस में डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो डी एक्स अपॉन डी वाई अगर ज़ीरो हो गया तो आप समझ लो, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसका रेसिप्रोकल अगर मतलब 1/m का वैल्यू जीरो हो गया तो अगर हम m को ट्रांसफ़र करें यहाँ पे तो y माइनस वाई वन अपॉन एम लिख सकते हैं ना। सो इस केस में y जो है सॉरी 1/m का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इसलिए वर्टिकल टेंजेंट के केस में अगर किसी पॉइंट, जैसे इन सारे पॉइंट्स में क्या हो रहा था, यहाँ भी जो मेरा टेंजेंट था है ना वो x इक्वल टू जीरो पॉइंट से पास हो रहा था और वर्टिकल था इसलिए इसका इक्वेशन x इक्वल टू जीरो था। ठीक है, यहाँ पर भी इससे ऊपर भी हमने देखा, यहाँ पर भी वर्टिकल टेंजेंट था पासिंग थ्रू विच पॉइंट, जीरो कॉमा जीरो, इसलिए इक्वेशन जो है सिंपली x इक्वल टू जीरो। तो ये सिंपल सी बात है। ओके, अब कई बार क्या होगा कि ये जो हम डिफ्रेंशिएशन से स्लोप कैलकुलेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से जो हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कर्व को हमने डिफ्रेंशिएट करा वाई के सॉरी एक्स, ये अपने एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जब हमने x1 y1 पॉइंट उसमें पुट किया तो वो कई बार क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें, अब ये तो इतना तो हम लोग समझ ही गए कि हमें डिफ्रेंशिएट करके स्लोप देखना है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्व हो सकते हैं जहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स ये कैलकुलेट करके और फिर जब उसमें x1 y1 पॉइंट, जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट लिखना है, वो जब मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करने जाऊँगा तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब वो अनडिफाइंड बन जाएगा तो उस केस में इसी सब चीज़ों के लिए ये लिमिट वगैरह पढ़ाया जाता है ना, तो फिर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, डी वाई बाई डी एक्स जो है x1 और y1 का वैल्यू पुट करने पे वो अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमें बेसिकली लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स x1 ये लिमिट कैलकुलेट किया और लिमिट का वैल्यू कुछ फाइनाइट आ गया, वो तभी होगा ना जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर ऐसा हो गया इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि जो है डिफरेंशिएशन हमारा डिफाइंड है, और जो भी उस dy बाई डी एक्स के लिमिट की वैल्यू आ रही है वही हमारा टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ऐसा अगर हुआ कि dy बाई डी एक्स मेरा क्या बन जाए, इन्फिनिटी या नॉट माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो उस केस में हमारा चूँकि dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जब टेंड करेगा तो dx अपॉन dy जो है, dx अपॉन dy ये जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा, तो उस केस में वर्टिकल टेंजेंट का केस बन जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता है तो ऑब्वियसली टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अगला पॉइंट है वो नॉर्मल वाला, वो भी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। किसी पॉइंट ए पर कर्व के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन, ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तब इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जहाँ पर ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग ऐसे लिखे ही थे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई कैलकुलेटेड एट x1 y1, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, इफ़ अ टेंजेंट ऑन अ कर्व इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, ओके, दिस डजंट मीन दैट द टेंजेंट इज ड्रॉन एट द पॉइंट ए, ओके। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई कर्व है इस तरीके का और एक टेंजेंट है जो किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ए पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर है, ए पॉइंट इज ऑन द कर्व, ठीक है। बोला जा रहा है कि किसी कर्व पे मौजूद किसी ए पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है, तो इसका मतलब कभी भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए इसका मतलब कि जो टेंजेंट है वो ए से पास, मतलब टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट किसी दूसरे पॉइंट पे रहा हो, टेंजेंट किसी दूसरे पॉइंट पे रहा हो लेकिन वो पास हो रहा हो कौन से, जैसे इस केस में देखो टेंजेंट तो पी पॉइंट पे है लेकिन पास हो रहा है कहाँ से, ए पॉइंट से, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ऐसा बोला जाए कि इफ़ अ टेंजेंट is passing through a point A lying on the curve, this doesn't mean that the tangent is drawn at point A. A पे ड्रॉ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट अ फैक्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड इनिशियल ऑर्डिनेट। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको, ठीक है ना, ऐसा इनिशियल ऑर्डिनेट देखने को मिल जाए। टेंजेंट का इनिशियल ऑर्डिनेट बताने का मतलब कि टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट को ही हम लोग इनिशियल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। तो ये सारी डिस्कशन हमने कर ली, जो भी इक्वेशन वगैरह लिखना था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया। अब हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ज़रा डिस्कस कर लिया जाए कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, सबसे आसान क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कर्व के ऊपर ही कोई x1 y1 पॉइंट दिया और पूछ लिया वहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो बस उसके लिए हमें स्लोप डिटरमाइन करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसमें वो कहाँ पे कैलकुलेट करना है, x1 y1 पे, ठीक है। तो वहाँ से हमको स्लोप मिल जाएगा, तो फिर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन का वेरिएशन ये हो सकता है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको कहीं बाहर दे दिया जाए, बोला जाए यहाँ कोई एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, आउटसाइड द कर्व, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है कर्व के ऊपर, ठीक है, एक्सटीरियर किसी पॉइंट से। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको एज्यूम करेंगे कुछ अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब जब भी हम लोग एज्यूम करने जाएंगे पॉइंट को, तो कोशिश करेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म में एज्यूम करें। अगर हमारे लिए ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप का इक्वेशन दे रखा है, मतलब जिस केस में हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर लिख पाएँ, तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट को एज्यूम करा जाए, ठीक है।
क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे पता है नहीं, तो पॉइंट एज्यूम तो करना ही है। पैरामीट्रिक फॉर्म में एज्यूम करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो वेरिएबल है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो खैर पॉइंट तो एज्यूम करना पड़ेगा। पॉइंट जब हम एज्यूम कर लिए तो अब हमारे पास दो अननोन है अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो एक तो स्लोप यहाँ से दिख रहा है y1 माइनस बीटा इक्वल अपॉन x1 माइनस अल्फ़ा। स्लोप एक हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा dy बाई डी एक्स कैलकुलेटेड एट अल्फ़ा कामा बीटा पॉइंट, वहाँ से लिख के दोनों को इक्वेट कर देंगे, स्लोप को इक्वेट कर देंगे। एक बार स्लोप हमने वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके लिखा, दूसरी बार हमने डिफ्रेंशिएशन से लिखा। दोनों एक ही लाइन का स्लोप है तो इक्वेट कर दिए, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा भाई, पॉइंट हमने p कहाँ पे एज्यूम किया, इस वाले इक्वेशन के ऊपर, इस वाले कर्व के ऊपर। तो बीटा इक्वल टू एफ अल्फ़ा तो होगा ही होगा, दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। और क्या वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में, देखें। और ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई कर्व ऐसा दिया हो, ठीक है, फिर एक अलग से एक लाइन दे दिया है, ठीक है, ये लाइन है, ये गिवन होगी, ठीक है। या तो लाइन गिवन होगा इक्वेशन के फॉर्म में, या उस लाइन का स्लोप गिवन होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसी लाइन के पैरेलल, उसी लाइन के जो गिवन लाइन है उसी लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट लिखिए इस वाले कर्व जिसका इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया होगा। ठीक है, तो अगेन हमको पॉइंट तो दिया नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि हमने कर्व कौन से पॉइंट पे लिखा, अल्फ़ा बीटा पॉइंट पे। और ध्यान रहे हमेशा कोशिश करेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म में एज्यूम करें। ठीक है, फिर अगेन वही स्लोप इक्वेट करना है। एक तो स्लोप इसका मुझे पता है ऑलरेडी m, फिर यहाँ पे मैं इस टेंजेंट का स्लोप कैसे लिख सकता हूँ, तो वही dy बाई डी एक्स विच इज़ कैलकुलेटेड एट द पॉइंट अल्फ़ा गामा बीटा इक्वल टू m। यहाँ से एक इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरा इक्वेशन वही दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व दिस y इक्वल टू एफ एक्स, सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, दूसरा वहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी डिफ्रेंशिएशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डिफ्रेंशिएशन वगैरह तो खैर आपको सब पता ही है कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है कैसे नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये पहला क्वेश्चन आ गया, इस कर्व के ऊपर 1,6 पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं यही चेक करूँगा कि ये 1,6 पॉइंट टेंजेंट कर्व के ऊपर लाई करता है या ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट है। तो देखो क्लियरली दिख रहा है x इक्वल टू 1 रख के y इक्वल टू 6 मिल रहा है। सो 1,6 इज ऑन द कर्व के ऊपर आ गया। तो अब बस मुझे क्या चाहिए, स्लोप, एंड स्लोप इज dy बाई डी एक्स कैलकुलेटेड एट पॉइंट 1,6। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाए। सो dy बाई डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, और इसको मुझे 1,6 पे कैलकुलेट करना है, मतलब x की जगह पे मुझे 1 पुट करना है, y की जगह पे 6। तो अगर y रहता तो 6 रखते हैं, फिलहाल तो x है तो उसकी जगह पे 1 रखा हमने। 3 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, सो दिस इज 3 3 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो स्लोप 10 मिल गया और पॉइंट तो ऑलरेडी 1,6 था। तो जो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन बना, सो दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, और एट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिखे गिवन है अपने को, लेकिन ये बताया कि ऐसे पॉइंट पे लिखना है टेंजेंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। सो फाइनली इट इज गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, 0।
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होना है तो 0 तो होना ही, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट टेंजेंट इज ड्रॉन एट सम अल्फा बीटा पॉइंट, ठीक है ना। कोई स्टैंडर्ड टाइप का इक्वेशन रहता तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज कर लेते, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हमने सीधे अल्फ़ा बीटा लिख लिया, ठीक है। हमने ये मान लिया कि अल्फ़ा बीटा पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट तो चाहिए होगा ना, कौन से पॉइंट पे हम टेंजेंट लिखने वाले हैं, वो पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। अब एक तो हम लोग स्लोप कंपेयर करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, उसके लिए मुझे dy बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो लिख लेते हैं 3x² माइनस 9x प्लस 6, ठीक है, या फिर 3 कॉमन, तो x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये तो हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स मुझे कहाँ कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लिख रहा हूँ, यानी कि अल्फ़ा बीटा पॉइंट, ओके। सो ये हो गया मेरा जो स्लोप है, दैट इज dy बाई डी एक्स कैलकुलेटेड एट द पॉइंट अल्फ़ा बीटा। तो ये मिलेगा 3 टाइम्स, अब बीटा तो रखना है y की जगह पे, यहाँ पे तो सिर्फ x है ना, तो अल्फ़ा रखेंगे, अल्फ़ा² माइनस 3 अल्फ़ा एंड प्लस 2, और ये स्लोप किसके इक्वल दिया था, इक्वल टू 0, तो ये 0 हमने यहाँ से कर लिया। फिर अब देखो ये बड़ा इक्वेशन आसान सा बन गया ना, ये इसका फैक्टर हो गया अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू 2 मिल गया, ओके। अल्फ़ा इक्वल टू 1 के लिए फिर बीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, अल्फ़ा बीटा पॉइंट तो इस कर्व के ऊपर है ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, ठीक है, मतलब अल्फ़ा माने क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 9 बाई 2 प्लस 6 प्लस 5, ओके। 6 प्लस 5 इज 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 9 बाई 2 इज व्हाट, 15 बाई 2, सो बीटा इज 15 बाई 2। फॉर अल्फ़ा इक्वल टू 2 अगेन कुछ बीटा का वैल्यू आ जाएगा, वो आप देख लेना क्या है, ठीक है। तो अब ये दो वैल्यू क्यों आ रहा है, दो वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसे 2 पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जहाँ पर हमारा टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, हालांकि ग्राफ को ज़रूरी नहीं है ड्रॉ करना, बट मैं ऐसे समझाने के लिए अगर ड्रॉ करूँ, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा। देयर आर टू सच पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस, इसलिए ये 2 पॉइंट करके आ रहा है ऐसे, है ना। तो खैर ये सब पॉइंट आप लिख लोगे, पॉइंट लिखने के बाद तो आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख ही सकते हो, क्योंकि आपको स्लोप जो है वो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज we have to find the tangent to the curve y equal to x² minus x plus 5 at the point tangent to which makes equal intercept on the axis, okay. So equal intercept on the axis, what does it mean? Equal intercept on the axis means either the slope is 1 or the slope is minus 1, okay. So again you can observe the point is not given, so you will have to find out the point where the tangents are drawn. What you will do, you will just consider the point to be alpha comma beta, and the one equation, if you are considering the point to be alpha beta, one equation will be, because the point is on the curve, so beta will be alpha square minus alpha plus 5, this is the first equation, and upon differentiating and equating the slope to minus 1 and plus 1, you will get another equation, okay. So in this manner we can solve this question, okay. Let us move on to the next question. This is, we have to find the equation of curve on the equation of tangent on the curve y equal to x to the power 1 by 3 into 1 minus cos x, okay,
at the point x equal to 0. So basically the point is given. If x is given, we can calculate what the y is. Y will also be 0. If we put x equal to 0 here, y will also come out to be 0. Okay, so the point is 0 comma 0 origin. Okay, so the only thing is we have to calculate the slope, and for that matter we have to calculate the derivative. Okay, so differentiating this curve in with respect to x. Okay, plus just apply the product rule, x to the power 1 by 3. Okay, so this is the differentiation. Okay, x to the power 1 by 3 minus 1, it means, so this is sin x into x power 1 by 3 plus 1 minus cos x upon 3 into x to the power minus 2 by 3 is basically this. Okay, so here you are very clearly observing that the x is appearing in the denominator. Okay, so if we try to calculate this dy by dx at the point 0 comma 0, because the tangent is to be written at 0 0, so basically this dy by dx is to be calculated at 0 0, but the moment we try to put the value of x as 0 in this expression, this will become not defined. Okay, this will become not defined. So what can we do? Then we will use the limits. Okay, we will have to use the limits. Okay, so I am leaving this to you. You will have to calculate this limit x tending towards 0 dy by dx thing. Okay, if this limit is finite, then that will be our slope. If this limit comes out to be infinity or minus infinity, then there will be the case of vertical tangent. We have already discussed all these points. Okay, these are the points. Okay, so make use of these points by calculating the limits. Okay, we'll move on the next question, and that is, this is the curve and we have to write the equation of tangent at some point 1 comma 2. So first we'll have to check where this point 1 comma 2 is. Okay, let us try to satisfy this point 1 comma 2 in the equation. So this will be 8 minus 24, and this will be plus 24 minus 7 equal to 1. 8 minus 7 equal to 1. Okay, so the point is clearly satisfying the equation of curve. It means the point is on the curve. So this is the simplest case. Okay, point is given, you will have to differentiate this curve. The only thing that is, you will have to differentiate this equation in terms of with respect to x. Okay, don't try to calculate y in terms of x, because maybe this is a implicit function. Okay, so it may be that we are not able to find what is the value of y in terms of x. Okay, so we will just have to differentiate this whole expression in terms of x, because we are not interested in finding the value of y in terms of x. The only thing we require is to calculate this dy by dx. Okay, so you will have to just differentiate this whole expression in terms of x. So this will be 3y square dy by dx to 12y dy by dx plus 12y dy by dx equal to 1. Okay,
from here you can take this dy by dx as common, and this will be 1 upon 3y square minus 12y plus 12. Then you can put this 1 comma 2 point, okay, 1 in the place of x, 2 in the place of y. There is no x, so put y as 2, okay. So 1 upon 12 minus 24, okay. Again, when we are trying to put this dy by try to calculate this dy by dx at our point 1 comma 2, at this point 1 comma 2, this is not defined, okay. Then we can use this limit y is tending towards 2, 1 upon 3y square minus 12y plus 12, and this will be again infinity, okay. So this is clearly the case of vertical tangent, okay. If vertical tangent is occurring at the point 1 comma 2, so this equation will be what? X is equal to 1, okay. Move on to next question. Next question says you have to find the tangent at this curve which passes through the point minus 4 comma minus 4, okay. Let us check whether the point minus 4 is lying on the curve or not. So this is plus 16, and this is plus 8 is not equal to minus 4, okay. So clearly the point is not lying on the curve, okay. It means this is an external point. So what can we do? Just make a rough sketch. Let this point is minus 4 comma minus 4, and this is our tangent. Tangent is at some point alpha comma beta, okay. Let alpha beta be the point of tangency. So one equation will be beta square minus 2 beta is equal to alpha, because the point is lying on the curve itself, and the other equation we will get by comparing the slopes, okay. So the slope is beta plus 4 y2 minus y1 upon x2 minus x1 upon alpha minus minus 4. So this is alpha plus 4 equal to slope, that is the slope that we will write with the help of derivative, okay. So let us differentiate this curve. 2y dy by dx minus 2 dy by dx is equal to 1. So dy by dx is what? 1 upon 2y minus 2, okay. And we have to calculate this at alpha comma beta. So this becomes 1 upon 2 beta minus 2. 1 upon 2 beta minus 2. So this is second equation. You will just have to solve this equation number 1 and this equation number 2 in order to get what the value of alpha and beta is, okay. Once we have the value of alpha and beta, we will calculate what the slope is by putting the value of beta here, and then we can easily write what the equation of tangent is. Move on to next question. With the tangent to y equal to x cube passes through 1 comma 1, then find all the possible equations, okay. Tangent is passing from the point 1 comma 1. This doesn't mean that the tangent is drawn at the point 1 comma 1, okay. Tangent is just passing through 1 comma 1. Let us try to draw this y equal to x cube, okay.
this is the point 1 comma 1. The tangent is passing through this point. Okay, अभी tangent 1 comma 1 से पास हो रहा है. It means the equation of tangent कैसा लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है ना, जो भी टेंजेंट है, मैं नहीं पता कहाँ क्या उसका स्लोप है क्या नहीं है, बट पास तो हो रहा है एक्स वन वाई वन से, तो उसका इक्वेशन ऐसा ही कुछ होगा. अब वो किसी पॉइंट पे तो टेंजेंट होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि टेंजेंट किसी न किसी पॉइंट पे तो होगा ही होगा. ठीक है, ये हम लोग रफ स्केच बना रहे हैं. ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा. ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा पे जो हमारा टेंजेंट होगा, जो कि हमारा 1,1 से पास भी कर रहा है ना, तो उसका स्लोप एक तो हो जाएगा जो हम y1 माइनस y2 माइनस y1 करके लिखेंगे, बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, ये चीज़. और दूसरा हम डेरिवेटिव की हेल्प से लिखेंगे. तो डेरिवेटिव तो इसका dy बाई डी एक्स जो है वो 3x स्क्वायर है. ठीक है ना, और ये मुझे कैलकुलेट कहाँ करना है, अल्फ़ा बीटा पे. सो दिस इज़ 3 अल्फ़ा स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा, तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा बीटा में एक इक्वेशन मिला, वो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. बीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर. ठीक है, और अल्फ़ा बीटा में दूसरी इक्वेशन और क्या होगी, अल्फ़ा बीटा में दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बीटा इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व के ऊपर है ना, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, तो बस यहाँ से देखो, इस अल्फ़ा क्यूब की जगह पे आई कैन राइट बीटा. सो 3 बीटा यहाँ पे, 1 बीटा यहाँ पे, है ना. तो यहाँ से बन जाएगा बेसिकली 2 बीटा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. एक इक्वेशन ये आ गया. ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है. अब ये आप सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे बीटा की वैल्यू फिर से अल्फ़ा क्यूब रख के क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, और वो बहुत ही ईजी उसका सलूशन होगा. एक तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 सामने दिख रहा है अपने को. ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना खुद ही. अल्फ़ा बीटा, अब ये जितने भी वैल्यू आ जाएंगे तो उतने टेंजेंट हम लोग लिख सकते हैं पासिंग फ्रॉम 1 1. बस ये अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो वो आप कर लेना खुद ही. ओके, और क्या क्वेश्चन है, आगे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, ऐसा करके कुछ कर्व है, वेयर इट क्रॉसेस वाई एक्सिस. कौन से पॉइंट पे मुझे लिखना है, जिस पॉइंट पे ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ना. वाई एक्सिस को जहाँ पर भी ये कर्व क्रॉस कर रहा होगा उधर पे x इक्वल टू क्या होगा, 0. और जैसे ही हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e टू द पावर 0 इज़ 1, सो y विल बी व्हाट, b. तो इसका मतलब हमें 0, b पर 0, b पर क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है. तो ये यहाँ से पॉइंट मिल गया. क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है कि ये a और b जो है कांस्टेंट है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. a और b तो रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, 0, b पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है. बस मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए तो भाई डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. dy बाई डी एक्स, b तो कांस्टेंट है, जाएगा -1/a, है ना, यानी कि -b अपॉन a इंटू ई पावर -x/a. और ये मुझे कैलकुलेट करना है 0, b पॉइंट पे. सो द स्लोप विल बी, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -b अपॉन a मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ये पूरा टर्म जो है वो 1 बन जाएगा.
ठीक है, तो स्लोप मिल गया है, पॉइंट है हमारे पास, टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल दोनों लिखना है। कौन से पॉइंट पे लिखना है, थीटा इक्वल टू π/2 पे। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है ना। तो थीटा इक्वल टू π/2 पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 2a, एंड वाई का वैल्यू दे रखा है 1 प्लस cos थीटा इंटू ए। थीटा इक्वल टू π/2 पे y का वैल्यू विल बी a. It means we have to write the equation of tangent at the point a, 2a. तो पॉइंट मिल गया। पॉइंट के बाद और क्या चाहिए अपने को, स्लोप। स्लोप के लिए हम लोग dy/dx कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कौन से पॉइंट पे, थीटा इक्वल टू π/2 पॉइंट पे, है ना। तो अब देखो दो तरीके हैं हमारे पास करने को, या तो हम लोग पहले थीटा एलिमिनेट करके एक्स और वाई में इक्वेशन बना लें और फिर dy/dx कैलकुलेट करें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जब सीधे ही एक्स और वाई थीटा के टर्म में दे रखा है, तो dy/dx कैलकुलेट करने के लिए हम लोग dy/d थीटा और dx/d थीटा ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके डिवाइड कर सकते हैं ना। तो वहाँ से ये मिल जाएगा थीटा के टर्म में। थीटा का वैल्यू हम लोग जैसे ही π/2 पुट करेंगे, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे, और टेंजेंट मिल गया तो नॉर्मल भी मिल ही जाएगा। ठीक है, अगेन ये भी कोई क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। कर्व दे रखा है, बोल रहे हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन अब बताइए ऐसे टेंजेंट जो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब कि पैरेलल लाइन का तो स्लोप बराबर होता है ना। तो कुल मिला जुला के अपने को स्लोप का वैल्यू, टेंजेंट के स्लोप का वैल्यू जो है ये बता दिया गया 3 के इक्वल है। ठीक है, पॉइंट नहीं पता है तो पॉइंट हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। पॉइंट एज्यूम करके फिर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, एक इक्वेशन वहाँ से बनेगा, दूसरा स्लोप कंपेयर करेंगे, स्लोप कंपेयर करेंगे, दूसरा इक्वेशन वहाँ से बनेगा। ठीक है, बस सॉल्व कर सकते हो। आगे मैंने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कुछ कर्व्स लिख रखे हैं, है ना। ये क्यों लिख रखा है, क्योंकि मैंने बताया था हमेशा हम लोग की कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी पॉइंट एज्यूम करना होता है तो इट्स बेटर टू राइट द पॉइंट्स इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, क्यों पैरामीट्रिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उस केस में जो है वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगा, है ना। तो ये सब आप एक बार नोट कर लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें अपनी पढ़ी हुई हैं ना, 11th क्लास में सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। ठीक है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। एक बार आप इसको जस्ट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स का यूज हम लोग कर सकते हैं अगर इस तरीके के कुछ कर्व्स आ गए तो वहाँ पर पॉइंट्स को एज्यूम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7th पॉइंट क्या लिख रखा है मैंने, लेट द पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये एल्जेब्रिक वर्ड हम हटा सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन अपने आप में सफिशिएंट है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है, लेकिन उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन का ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कि जो भी लीस्ट डिग्री के टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, जो भी हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन होगा हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन उसकी कुछ डिग्री होगी, है ना। तो उसमें जो भी लीस्ट डिग्री के टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे ये पहला एग्जांपल है, देख लें, x² + y² - 2x - 4y। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का या इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जो है वो 2 है, लेकिन लीस्ट डिग्री का जो टर्म इसमें इन्वॉल्व है वो है -2x और -4y।
तो हम लोग सीधे अगर इस -4x और -2x है ना, -2x -4y, इसको सीधे ही अगर मैं इक्वेट कर दूं किसके साथ में, 0 के साथ में, तो वहाँ से टेंजेंट एट 0 डायरेक्टली ये कैलकुलेट हो जाता है। 0 पर टेंजेंट की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली मिल जाती है, टेंजेंट का इक्वेशन बेसिकली है ना। बट ये एप्लीकेबल तभी होगा जब पॉलिनॉमियल फंक्शन हो, ठीक है, और पॉलिनॉमियल फंक्शन भी 0 से पास कर रहा हो, मतलब उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी देख लूँ, जैसे ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री कितनी है, 4। लीस्ट डिग्री के जो टर्म्स इन्वॉल्व है कौन से, ये लीस्ट डिग्री का टर्म हुआ ना। तो अगर मुझे टेंजेंट लिखना है ओरिजिन के ऊपर, सो इट विल बी नथिंग बट दिस, है ना, y कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि दो टेंजेंट आ गए, x बराबर 0 एंड x बराबर y, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट 2,8। ओके, पहली चीज़ तो दिख गई अपने को यहाँ से, 2,8 इज लाइंग ऑन द कर्व। ओके, अब ये जो है ये इस कर्व को दोबारा इंटरसेक्ट करता है बी पॉइंट पे, तो उस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। ये तो हम पहले से जानते हैं कि टेंजेंट जो है वो कर्व को दोबारा इंटरसेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेना। कौन से पॉइंट पे, लेट ए पॉइंट है जिसका नाम है 2,8 है ना, तो वो हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 2। अब ये स्लोप कैसे मिलेगा, तो वो तो dy बाई डी एक्स करके मिल जाएगा। 3x स्क्वायर कहाँ कैलकुलेट करना है, 2,8 पे, तो ये मिल गया, x का वैल्यू हमने 2 रखा, 3 इंटू 4 12, सो y माइनस 8 इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, या फिर y इक्वल टू 12x प्लस 8 माइनस 24 इज माइनस 16, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ओके, अब ये टेंजेंट जो है कर्व को फिर से दोबारा किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, बी पे, तो वो बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा कर्व के साथ ही, ठीक है। तो जब कर्व के साथ सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को, टेंजेंट की इक्वेशन को, तो एक तो पॉइंट वही आएगा 2,8 जहाँ पर टेंजेंट था। ओके, जब भी दो कर्व को सॉल्व करते हैं कॉमन पॉइंट मिलता है, तो एक तो वही पॉइंट है 2,8 जो कि कर्व के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है। उसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स मिलेंगे हमें, वो हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो बस ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो y का वैल्यू हमने 12x माइनस 16 रख दिया, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बना, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 16 है। तो अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल रूट होगा तो वो 16 के ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 16 का फैक्टर एक बार रख के चेक कर लेना है। जैसे 1 रखें तो क्लियरली दिख रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 2 रखें तो 2 पे दिख रहा है ना, 2 पे सेटिस्फाई हो रहा है ये। सो x माइनस 2 इज़ 1 फैक्टर। अब x माइनस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म 16 आना चाहिए ना, तो यहाँ -2 है, तो यहाँ -8 होगा, तब कांस्टेंट टर्म जो है वो +16 आ जाएगा। और फिर यहाँ देख लें लीनियर टर्म बैलेंस करके, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे क्या आ रहा है, -2, तो यहाँ पे +2x स्क्वायर आना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में जो है वो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो x इक्वल टू 2 आया, वो तो हमें पता ही था कि x बराबर 2 आना चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो आएगा ही। उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8
इसको हमने 0 के इक्वल किया तो x का वैल्यू मिला यहाँ से, सीधे फैक्टर ही कर लेते हैं ना। क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, x प्लस 4 एक फैक्टर और x माइनस 2 दूसरा फैक्टर। सो x इज -4 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हमेशा रिपीटेड रूट होगा, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या था 2,8, तो वहाँ रिपीटेड रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा जो मेरा पॉइंट आया x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 के लिए मेरा y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -64, क्योंकि कर्व का इक्वेशन ये था ना। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा b पॉइंट है, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही मिल गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व करिएगा खुद ही। ओके, एक क्वेश्चन गिरा और एक क्वेश्चन गिरा है ना। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे और लिख लेते हैं जो हमने अभी अभी इसमें थोड़ा सा यूज किया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे। ठीक है, अगर इफ़ वी सॉल्व टेंजेंट एंड द कर्व, वो भी कौन सा कर्व, कोई दूसरा नहीं, जिस कर्व के ऊपर वो टेंजेंट है, ऑन विच द टेंजेंट इज ड्रॉन। ठीक है, इफ वी सॉल्व टेंजेंट एंड द कर्व, that curve on which the tangent is drawn, we will always have a repeated root. We will always have repeated roots. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इसमें कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट का यूज होगा, इसको भी आप देख लेना क्या है। ओके, तो ये हो गया हमारे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का पहला पार्ट। इस वाले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखना सीखा और कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पर डेरिवेटिव्स डिफाइंड नहीं होते हैं, वहाँ पे हम लोग लिमिट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, उसके लिए dx/dy 0 हो जाता है। ये सब चीज़ें, टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ओके, डेफिनेशन क्या है। ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसका अभी सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।